میں نے حضرت آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر کوئی ڈاکٹر چیلنج کر دے کہ سنگ و بیان کے مقابلے میں اس کی مثل لے آئے تو آپ مینگنی اٹھا کے نہیں لے جا سکتے. میں نے قرآن کی مثل کا چیلنج کیا تھا اور مجھے صورت کرونا پیش کی گئی آمنہ شریفی کے حوالے سے. تو اس طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں پر جو صورت کرونا ہے یہ یقیناً سنگ و بیان کے مقابلے میں جس طرح آدمی مینگنی لے کے آتا نا اسی کی مثل ہے. اس کی وجوہات کئی وجوہات. پہلی تنقید تو یہ ہے کہ اویس صاحب اپنی صورت کرونا قرآن کی کس صورت کے مقابلے میں پیش کی ہے، مثل پیش کی ہے؟ قرآن کی جو جنرل آیات ہیں ان کی طرح کی ایک صورت جو ہے آمنہ الشرقی نے بنائی ہے. صورت مستقل ایک حصہ ہوتا ہے. جی جی، ایک مستقل صورت کے طور پر پیش کی ہے. اور ایک قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس جیسی کوئی بھی جو صورت وہ نہیں لکھی جا سکتی، اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں لکھی جا سکتی، اس دعوے کو جھٹلایا ہے آمنہ الشرقی نے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ صورت جو ہے یہ مابقیہ حصے کو کہتے ہیں. کسی چیز کا مابقیہ حصہ، اس کا کچھ حصہ یا پہلے ہو بعد میں یہ ذکر کیا جائے، یا کچھ حصہ بعد میں ہو یہ پہلے ذکر کیا جائے، لیکن مابقیہ حصے کو صورت کہا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ہی صورت ہے. اس کے سیاق و سباق کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کو صورت اگر کہا بھی جائے اور اس کو صورت کہنا ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے لیے مابقیہ یا کچھ سیاق و سباق بتا سکتے ہیں؟ جی، اس کا چونکہ آمنہ الشرقی نے کرونا کے متعلق پوری کتاب نہیں لکھی تھی، اس نے صرف اور صرف آپ کو ایک سیمپل پیش کیا تھا کہ قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس جیسی کوئی بھی صورت بنانا یا کوئی بھی آیت بنانا ناممکن ہے. ٹھیک ہے، سیاق و سباق تب ہوتا جب اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہوتی. اس نے آپ کو ایک سیمپل بنا کر پیش کیا حضور. جی لقمان صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ سورہ کرونا کو سورہ کہنا ہی غلط ہے، تو یہاں سے کنٹینیو کیجئے گا. حضرت دیکھیں، صورت کی تعریف آسان سی ہے کہ کسی بھی چیز کا مابقیہ حصہ اس کو صورت ٹکڑا کہا جاتا ہے. تو اگر باقی مطلب کتاب مستقل ہے نہیں، اس سے پہلے آگے پیچھے کوئی صورت ہے نہیں، تو اس کو صورت کہنا ہی مناسب نہیں ہے، تو اس کا نام ہی غلط پڑ گیا. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں جو کلام ہے، جو آیات ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد کہیے گا. بالکل، اس کے متعلق بھی ذرا آپ سے کہوں گا. دیکھیں صورت جو ہے نا، قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ مستقل اپنا ایک دعویٰ پیش کرتی ہے شروع میں، اس کے بعد اس پہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد اس دلیل کو، اس دعوے کو دلائل کے بعد، دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کے لیے زجر اور تخویف ذکر کرتی ہے. یہ عموماً قرآن کا منہج ہے، دستور ہے. یہاں پر جو آپ نے صورت کرونا پیش کی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ دعویٰ ہے. اگر دعویٰ ہے اس سے دلائل عقلیہ نقلیہ کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے نہ بشارتیں ہیں اور نہ تخویف و زجر ہے. تو لہٰذا یہ کسی قرآن کے مقابل ہو سکتی ہے؟ اچھا لقمان صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی لائیو سٹریم میں ذکر کیا تھا کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میری بیوی سے بہتر آلو والے پراٹھے کوئی نہیں بنا سکتا، تو دنیا بھر سے لوگ جو ہیں آلو والے پراٹھے بنا کر لائیں اور میں چکھوں اور میں بتاؤں کہ نہیں یار یہ ویسا نہیں ہے، اس میں وہ میتھی تھوڑی سی کم ہے، اس میں سے مرچ تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ ویسا پراٹھا نہیں ہے، وہ منہ کے اندر ذائقہ نہیں آ رہا. اصل میں لقمان صاحب، آپ جو ہے نا، آپ اپنی قرآن مجید کی کسی آیت صورت کو سورہ کرونا کے ساتھ کمپیئر کر کے اس لیے ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، نیوٹرل نتیجے پر، کیونکہ آپ اس بحث کے آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہیں. آپ یہ دنیا پر چھوڑ دیں کہ سورہ کرونا جو ہے وہ کسی اور سورہ کے مثل ہے کہ نہیں. اب مجھے اگر آپ جی ہاں، مسئلہ یہ ہے اگر ساری دنیا اٹھ کے اس قرآن اور صورت کرونا کا موازنہ کرے گی تو وہ کسی قاعدے کی بنیاد پر ہوگا یا بغیر قاعدے کے وہ فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں جو ایک مثلاً لٹریچر پشتو کا ایک شاعر مثلاً وہ کہہ دے منصر جویو رقیبان مرد آباد ززف مخد گلان مرد آباد زست صلح خدای لرم ملشی ستادا واڑا بوتان مرد آباد. اس کے مقابلے میں کافی آتا ہے اور وہ شعر پیش کرتا ہے کہ یار میں بھی تو ٹھیک ہے، اس کی مثل پیش کرتا ہوں، اور وہ آگے سے کہے ستاپ دغم ادا دغا داسی دغا دغشی دغا بدر کما دغا بری دغا دغشی دغا ویل دغا تراشن دغا بری کم دغا بدر کما دغا بری دغا دغشی.
अब ये तो उसकी मिसल नहीं हो सकता। मेरी पश्तो देखिए आप अगर माशरा फैसला भी करेगा ना, माशरा वो किसी कायदे की बुनियाद पे करेगा। मैंने ठीक देखिए लफ्ज के एतबार से भी चैलेंज किया था, इल्मी बलागत के एतबार से चैलेंज किया था, अदब के एतबार से चैलेंज किया था। मैं वो जरा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये कुरान की बिल्कुल मिसल नहीं है। आमना अशरफी ने कोशिश की है, अपनी जगह की है, लेकिन ये किसी शेर के वो तरन्नुम में गुनगुनाने की सिवा कुछ नहीं है कि किसी शेर का मुकाबला सिर्फ गुनगुनाने से किया जाए। मैं आपसे फिर दोबारा से ये दरख्वास्त करूंगा ना कि जब आप किसी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते हैं तो आप एक पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, आपने अपना पार्ट दिया और आप नीचे आ गए, उसके बाद अगला जो कंपेटिटर है वो भी अपना पार्ट देगा और नीचे आ जाएगा। जजेस डिसाइड करेंगे कि आपका पार्ट बेहतर था या आपके कंपेटिटर का पार्ट बेहतर था। ठीक है, आप कहेंगे कि मेरी तकरीर में बहुत फसाहत और बलागत थी, मेरी तकरीर में ये था, मेरी तकरीर में वो था, लेकिन लोगों को डिसाइड करने दें कि क्या सूरह कोरोना जो है वो कुरानी फसाहत और बलागत, कुरान के जो दीगर आपके मयारात हैं उनके ऊपर पूरा उतरती है या नहीं। लेकिन पॉइंट रेज करने का मकसद लुकमान भाई ये था कि कुरान के मुकाबले में बहुत से लोगों ने कलाम लिखा है। अब आप एतराज करने की पोजीशन में नहीं हैं, एतराज वो कर सकते हैं जो सामे हैं। ठीक है, ये मेरा नुक्ता है। आप इस वक्त मुद्दाई हैं कुरान के मुताल्लिक या आप जो है सालिस हैं? मैं इस वक्त कुरान के मुतालिक ना सालिस हूं ना मुद्दई हूं। मैं सिर्फ और आप सिर्फ मुद्दाई हैं, एक दावा रखते हैं, वो दावा ये है कि इल्हामी किताब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं और उसके सबसेट में जब आप लोग ये दावा करते हैं कि कुरान मजीद जो है उस जैसी सूरत कोई बना नहीं सकता। हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है लुकमान साहब, तो अब बात यह है कि अब लोगों को फैसला करने दें कि सूरह अखलास जो है एक प्यारा लगना, और वो सूरह कोरोना जो है उसमें से कौन सी सूरत जो है वो इंसानी कलाम है और कौन सी सूरत जो है वो खुदाई कलाम है। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ नहीं लुकमान साहब, एक जी छोटा सा टेस्ट कि एक शख्स जो कि अरबी स्पीकिंग है और जिसने कभी कुरान नहीं सुना, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि कुरान क्या है, ये एक मैं थॉट आपको एक्सपेरिमेंट इन थॉट दे रहा हूं, उसके आगे आप सूरह कोरोना सुनाइए और उसके आगे आप सूरह अखलास सुनाइए, ठीक है, और उसको बताइए कि इसमें से एक सूरत खुदा की लिखी हुई है और एक सूरत आमना अलशरकी की लिखी हुई है, ठीक है, तो मुझे बताइए कि वो कौन सी है। ठीक है, तब वो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है ना वो डिसाइड कर सकता है, आप नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सूरत आपने पेश की है उसको कुरान का मुकाबिल या मिसल करार देना ही कुरान की गुस्ताखी है। सालिसीन किस पे छोड़ना चाहते हैं? एक मिनट, आप सालिस मुकर्रर कर लें, सालिस कौन है इधर? सर सालिस जो आप जनरल पब्लिक है जो कि आपको और मुझे जनरल पब्लिक आजमी या अरब, पूरी दुनिया के लोग जो है ना, जो कि इस वक्त उस पूरी दुनिया के लोगों से मैं देखिए कुछ सवालात करना चाहता हूँ, उसके बाद वो फैसला कर ले और मेरे सवालात के जवाब किसी भी सूरत में दे दे, मैं मान जाऊंगा कि ये कुरान की मिसल है। बस वो मुख्तसर से रख के अपने सवाल पे दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, इजाजत हो तो मैं जल्दी से रख लेता हूँ। जी जी। मेरा पहला सवाल यह है कि लफ्ज कोफील है, सबसे पहले जो जिक्र किया गया है वो ये है कि कोफील, ठीक है, सूरह कोरोना का आपके मुताबिक जो पहली आयत, ठीक है, ये कोफील मजदर है या मुश्तक है? अगर ये मजदर है तो इससे इश्तिकाक कोई सीगा बता दे, और अगर ये मुश्तक है, ठीक है, ये किसी मजदर का मुश्तक है, उससे बना हुआ है, किसी मजदर का से बना गया एक सीगा है, तो फिर वो मस्दर क्या है ये जरा मुझे वाज़ेह कर दें। अगर कोई आदमी इसके मस्दर या मुश्तक होने का जवाब कर सकता है तो मैं इंतजार करूंगा, होगा। और इसके अलावा बात वल फेरूसिल मुबीद में वो कस्मिया है या आतिफा है, इसका कोई बता दें। और इसी तरह अल मुबीद इबादा मुकम्मल इस्तेहसाल को कहते हैं। यहाँ पर लफ्ज जिक्र किया गया है, मैं साथ साथ आपकी सूरत भी आपको सुनाता रहा हूँ। वल फेरूसिल मुबीद इबादा कहते हैं मुकम्मल इस्तेहसाल को। तो क्या इस वायरस ने, इस बीमारी ने मुकम्मल इंसानियत को घेरा था? अगर नहीं तो मुकम्मल इस्तेहसाल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये सिरे से गलत है और वो है मुबीद। और इसके अलावा अल काफिरून से मुतलकन कुफार मुराद हैं जो इस्तिलाही कुफार हैं, या इस मर्ज के इनकार करने वाले मुराद हैं, क्योंकि आपकी सूरत में मज़कूर है फ़क़ाल अल काफिरून इन्नहु मरज़ुन अनीद। तो इस काफिर से कौन इस्तिलाही काफिर मुराद है या लुग़वी मुराद है? जो जो आपको पता हो वैसा आप बता भी सकते हैं।
अच्छा, हनीद लफ्ज जो है ना ये ज़वील क़ूल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, बमाने आइनात ज़िद्दी बखील, ठीक है। तो ये मरज़ की सिफत कैसे जिक्र की गई है, ये वो गलतियां हैं जो नाहवी सर्फ के एतबार से, ग्रामर के एतबार से इस सूरत में गलतियां की गई हैं। तो जो जिस सूरत में इतनी ग्रामर की बुनियादी गलतियां हों वो कैसे कुरान की मिसल तैर सकती है? ठीक है, फैसला आप किसी पर भी छोड़ दें। अब आपके इतराज़ात खत्म हो गए? आपके जी जी कंटिन्यू करें। और इसी तरह कल्ला, पहले मरज को साबित किया, ठीक है, कि इन्नहु मरज़ुन अनीद, और उसके बाद कहा कल्ला हिरगिज नहीं हूं, इनकार कर दिया, बल्कि कहा आगे कल्ला बल हुवल मौतुल अकीद। तो एक तरफ से मरज को जिक्र किया जा रहा है, दूसरी तरफ से उसका इनकार किया जा रहा है, उसको रद्द किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिजली आ गई, इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो यहाँ पर कल्ला जो लफ्ज जिक्र किया गया है ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा ला फर्क अल-यौम, ला फर्क अल-यौम, ये एक लफ्ज जिक्र किया गया है आपकी सूरत में, आपको सुनाता हूँ। ला फर्क अल-यौम बैन अल-मुलूकी वल आबीद। आपका इंकिशाफ ये था जब कोरोना की तहकीक की गई, मरज की तहकीक की गई, तो कहा गया कि जो कुव्वत मुदाफात अच्छी रखता है तो वो बच जाता है, और जो कमजोर होते हैं तो वो अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाफर्क का क्या माना हो गया? लाफर्क तो यहाँ पर दुरुस्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फर्क ना होता तो कभी भी आपका इंकिशाफ ये ना होता कि जिनकी कुव्वत मुदाफात ठीक है, बेहतर है, उन पर ये मरज असर अंदाज नहीं हो सकता। और इसी तरह फातसिमू बिल इल्म, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस सूरत में। तो फातसिमू का माना है किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, और इल्म जो है ये माना है इसका वजूद नहीं होता। इल्म किसी भी चीज का इल्म ये माना होता है, इसका वजूद नहीं होता। तो एहतिसाम अलल इल्म अलल माना ये तो दुरुस्त नहीं है। अब मुझे वो सालिसीन बता दे, वही फैसला कर लें कि ये कैसा है। अच्छा जरा आखिरी बात, अस्समील, समीदुन, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है समील। वला तुखरिजू लितश्तरु समील, ठीक है। समीद कहते हैं गफलत को, और शेरा, बे शेरा तो जानते हैं खरीदो फरोख्त। तो शेरा का इतलाक ये समीद पर कैसे मुमकिन है? ठीक है, मेरे आखिरी इतराजात ये हैं कि वमकुसू, और इसी तरह वगुसिलू, ये जो अवामिर है ये किसकी तरफ से है और किसको है? और इसी तरह यहाँ पर जो अमर है ये वजूब के लिए है या नुदब के लिए है? आया इसमें दवाम और इस्तिमरार है या नहीं है? ये हमेशा के लिए है या वक़्त के लिए है? और इसी तरह सदका के बजाय इतनी ज्यादा गलतियां करने के बाद सदका के बजाय मेरी राय ये है कि यहाँ पर कहा जाए कज़बा जीलुल अज़ीम। और ऐसा आप मुझे बताएं कि जीलुल अज़ीम से क्या मुराद है? मुझे अरबी ज़बान नहीं आती सर। हजरत तो आपने मिसल पेश की है, कुछ तो आपको आना होगा। मुफ्ती लुकमान अख्तर मुफ्ती साहब का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इनके बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए।